A gulab jamun contains a sugar syrup up to 30%. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. देखिए what does it mean? Try to understand the meaning of this problem. The problem says there is a gulab jamun and it is what is the shape of it? Cylindrical at this point and hemispherical ends is there. The total length of this gulab jamun is 5 cm. Diameter of this hemispherical part is 2.8 and there is 30% sugar syrup. So 30% sugar syrup is there. What is there? 30% sugar syrup is present. So what you are asked to find out is syrup would be found in 45 जामुन. सी जामुन बोलते मुंह में पानी छूट गया होगा. इसके अंदर हमने गुलाब जामुन डाल रखा है, शुगर सिरप है, उसका शेप कैसा है? टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.8. तो आपको ये बताना है कि अगर 30% शुगर सिरप होता है तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा. लेट अस सी व्हाट वी विल डू, व्हाट वी कैन डू हियर. See, if I want the volume of one jamun, it will be equal to what? Volume of cylinder plus volume of two hemispherical ends. So what I'll do is I'll write here like this: volume of one gulab jamun, volume of one gulab jamun is equal to volume of cylinder, volume of cylinder plus volume of hemisphere, volume of hemisphere, and two hemispherical ends are there, so I have to multiply by 2. I have to multiply it by 2. Now see children, don't separately calculate volume of cylinder and volume of hemisphere, not necessary at all. कोई जरूरत नहीं अलग से निकालने की. क्या कीजिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए आप, पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज दिस पाई आर स्क्वायर एच? पाई आर स्क्वायर एच है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, और दो हेमिस्फीयर होने की वजह से आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2. रिमेंबर हियर रेडियस ऑफ द cylindrical part and radius of the hemispherical part are same, and that's why I have given the symbol R. R is the symbol for the radius of hemisphere as well as the गुलाब जामुन. दोनों के लिए एक ही मैंने यहाँ पर रेडियस दिया है. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब यहाँ दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा बच्चों. पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो है हाइट दिस एच. पाई आर स्क्वायर मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक आर बचेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? पाई आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट हाइट प्लस 2 इंटू 2 इज हाउ मच? 4/3 आर. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट आर. सी आपको डायमीटर दिया है 2.8, तो डायमीटर से आपको रेडियस बड़े आसानी से आप ढूंढ सकते हो. डायमीटर है 2.8, तो रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज 2.8 को आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए बच्चों. बड़े आसानी से आप कह सकते हो सर ये 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेडियस. नाउ यू वांट द height of the cylindrical part. See, height of the cylindrical part is the total minus the height of the hemisphere. Now you will say sir hemisphere do not have any height. I understand, but the radius is the height of the hemisphere. The radius of the hemisphere will be the height of the hemisphere. So height of cylindrical part is equal to what? Total height of the jamun minus 1.4 plus 1.4, then 2 times the radius is there, so this is 5 minus 2.8, and that is equal to how much? 2.2 centimeters. So what is this? This is the height of the cylindrical part. Let us substitute all those values here. This is 22/7 multiplied by 1.4 multiplied by 1.4 into 2.2 into 2.2
plus 4/3 multiplied by radius is 1.4. Now if you simplify this further, you will get 7 ones are 7 and this is 0.2. So this will be equal to 22 multiplied by, this is you see here 0.2 multiplied by 1.4, that will be equal to 0.28. 14 into 2 होता है 28, दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो 0.28 या 28 हम कहेंगे. 28 is not correct, 28 is correct. So here 2.2, this is 4 into 1.4. 4 into 1.4 is children 5.6 divided by 3. This if you simplify further, then what is that you are going to get is 22 multiplied by 0.28 multiplied by, see here if you take the LCM here, LCM अगर आप लोगे तो LCM कितना होगा बच्चों, ये 3 होगा. So 3 into 2.2, 2.2 मतलब होता है 6 प्लस ये होगा 5.6, ये होगा 5.6. तो इसको आप इंटू कीजिए अगेन, 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 6.6 प्लस 5.6, तो 6 प्लस 6 होगा 12, 6 प्लस 6 होगा 12 एंड अगेन हियर 5 प्लस 6 इज 11, कैरी 1 इज 12, सो 12.2 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर, व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट, इसको अगर आप इंटू करोगे 22 इंटू 0.28, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 2.22 इंटू 0.28. इफ यू मल्टीप्लाई यू आर गोइंग टू गेट 6.16. इसको इंटू करने से कितना आएगा 6.16 मल्टीप्लाइड बाय 12.2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3. तो इसको अगेन इफ यू मल्टीप्लाई दिस, अगेन इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये होगा 75.152 डिवाइडेड बाय 3. व्हाट इज दैट आई हैव डन, मैंने क्या किया यहाँ पर 6.16 को 12.2 से डिवाइड इंटू किया तो 75.152 है डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 25.05 cubic centimeter. Children, this is what is this? This is the volume of 1 gulab jamun, but I want 45 gulab jamun. So volume of 45 gulab jamun, 45 jamun, of course gulab jamun only, 45 jamun will be equal to what? Volume of 1 jamun multiplied by 45. Volume of 1 jamun is 25.05 multiplied by 45 jamun. And you want volume of sugar syrup. So volume of sugar syrup, volume of sugar syrup, volume of sugar syrup is equal to 30% of total volume, 30% of total volume, 30% of total volume. So that will be equal to 30 by 100. 30% means what? 30 by 100 multiplied by 25.05 multiplied by 45, because we are having 45 jamuns here. If you can simplify here, children, this 0 cancels with 0, 0 cancels with 0 here, again here 5 9s are 45, 5 9s are 45, 5 2s are 10 होगा. फिर और आप देखिए कि यहाँ पर 9 इंटू 3 होगा 27, 9 इंटू 3 होगा 27 इंटू 25.05 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन 27 को डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 13.5 इंटू 25.05. अगेन 13.5 को 13.5 को आप अगर 25.05 से इंटू करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 338.17 क्यूबिक सेंटीमीटर. क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जस्ट वंस अगेन जस्ट चेक इट आउट.
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू गुलाब जामुन, volume of cylindrical part plus volume of 2 hemispherical part, that will give you the volume of 1 gulab jamun multiplied by 45. You don't have to multiply here, multiply करके टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर इतना ही लिख दीजिए आप. बाद में शुगर सिरप के लिए हमने क्या किया, इस तरह से सारा इंटू किया. थोड़ा कैलकुलेशंस लेंदी है, मगर इन द एग्जामिनेशंस you write the steps, you will get the marks. Next here, a pen stand is made up of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboids are 15 cm into 10 by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of entire stand. See, if you want the volume of entire stand, what you will have to do is volume of cuboid minus volume of the 4 cones. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड है, उसके अंदर क्या है, पेन रखने के लिए डिप्रेशंस बनाया है. तो यू आर कीपिंग द पेन इनसाइड. व्हेन यू आर कीपिंग द पेन इनसाइड चिल्ड्रन, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन आपको करना पड़ेगा. तो वैसा आप करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स आई विल राइट हियर. व्हाट इज दैट, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स आई विल राइट. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड चिल्ड्रन, यू नो द फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. 4 कोन मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोन के लिए आप क्या करते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आपको पता है लेंथ है 15, लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 10 और हाइट है 3.5. 3.5 के लिए मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था. व्हाट इज इट, मेक इट एज 7/2. 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और पाई, हाउ मच आई हैव टू राइट, pi is equal to 22/7. pi is 22/7. रेडियस आपको दिया है, सी रेडियस इज 0.5, दैट मीन्स 5/10 इंटू 5/10, 5/10 इंटू 5/10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपको दिया, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, दैट इज डेप्थ गिवन टू यू इज 1.4. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द डेप्थ, डेप्थ मीन्स हाइट. So this if you simplify children, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So this will be 15 into 5 is 75, 15 into 5 is 75 multiplied by 7. Here if I simplify, 4 multiplied by 1/3 multiplied by 22/7 multiplied by 5/10 multiplied by 5/10 multiplied by 1.4. Let me see what are the things that we can simplify here. देखो क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 1s are 5 होगा बच्चों, 5 2s are 10 होगा, फिर से 5 1s are 5 होगा, 5 2s are 10 होगा, ये 2 2s are 4 होगा, ये पूरा कैंसिल. फिर से एक बार देख लो, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 4 1s are 4 मैंने यहाँ पर कर दिया. अब ये होगा 7 5s are 35, कैरी 3 52. सो व्हाट इज दैट, आई एम गोइंग टू गेट 525 माइनस this. What are the things that is possible, let us simplify. 7 1s are 7 and 7 2s are 14, but here it is 1.4, so 0.2 होगा. तो अब यहाँ पर क्या होगा, by 0.2 that will be equal to 4.4 divided by 3. सिंपल सी बात है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या किया मैंने, 7 1s are 7, 0.2 किया. ये 0.2 इंटू 2 बचता है 22 होता है 4.4. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 525 माइनस 3 1s are 3, कैरी 1, 3 4s are 12, 3 1s are 3 हो गया, कैरी 1, 3 4s are 12, 20 यानी 0.00 कर लीजिए, माइनस 1.46 आप कर लीजिए. तो आपको, या फिर और एक जीरो सही है तो और एक जीरो भी आप बढ़ा सकते हो.
तो that will be equal to how much? If you want, you can extend one more 0, then you will be getting 524.634 cubic centimeter. I hope class यहाँ पर P अगर आप चाहो तो 3 1 3, 3 4 12, 3 6 18. Again you can make one more 6 here. So here again, here one more 0, here 6. So you can very easily now 525.00 minus 1.466, and I think you can very easily subtract it. बड़े आसानी से आप subtract कर सकते हो. यानी हमने क्या किया यहाँ पर, क्यूबिकल पार्ट में से हमने क्या किया, ये वाला पार्ट को हमने माइनस कर दिया, तो हमको ये